پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 26۔ رات کو روز ڈوب جاتا ہے، چاند کو تیرنا سکھانا ہے، ڈگڈگی ہی نہیں بجانی مجھے، عشق کو ناچ بھی سکھانا ہے۔ چند لمحے موبائل کو گھورنے کے بعد اس نے کاؤنٹر کی دراز کھول کر بلیڈ کا آدھا ٹکڑا برآمد کیا، پھر آئینہ سامنے رکھتے ہوئے بلیڈ کا ایک کونا پیشانی کی دائیں جانب رکھ کر آہستہ سے گھسیٹا تو اس کے حلق سے ایک سسکاری سی نکل گئی۔ پیشانی پر ایک باریک سی لکیر تو ضرور بنی تھی، لیکن اس میں سے خون رسنا شروع نہیں ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں بغور اپنے تاثرات کا جائزہ لیا تو اسے اپنے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیلے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور دراز کھول کر بلیڈ واپس وہیں رکھ دیا۔ شاید ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے چند لمحے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر شاید کسی نتیجے پر پہنچ گیا، کیونکہ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار پر لٹکا ہوا چابیوں کا گچھا اتارا اور دکان سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک اسی وقت دیوار گیر گھڑی نے موسیقی کی مدھر آواز بلند کرتے ہوئے رات کے 3 بج جانے کا اعلان کیا۔ اذان نے شٹر نیچے گرایا اور پھر چاروں تالے لگانے کے بعد ایک کے بعد ایک انہیں کھینچ کر اس بات کی تسلی کی کہ تالے بند ہو چکے ہیں یا نہیں۔ پھر اس نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ماحول پر گہرا سکوت طاری تھا۔ چاروں طرف نظریں دوڑانے کے بعد وہ ایک جانب روانہ ہو گیا۔ جلد ہی وہ قریبی چوک پر پہنچ گیا جہاں روڈ کے کنارے 4-5 رکشہ قطار میں آگے پیچھے کھڑے تھے۔ جو ہی وہ ان رکشوں کے قریب پہنچا، سیٹوں پر اونگتے ہوئے رکشہ ڈرائیوروں میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاسپٹل جانا ہے، اذان نے ایک رکشہ والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی ضرور جائیں گے بادشاہو، آؤ بیٹھو، رکشہ والے نے جواب دیا تو اذان سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ کتنے پیسے لوگے؟ او جی جتنے مرضی دے دینا بادشاہو، پھر بھی بتا دو تو اچھی بات ہے، طے کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ اذان نے رکشہ ڈرائیور کے جواب سے متاثر ہوئے بغیر بدستور سوالیہ انداز میں پوچھا تو رکشہ ڈرائیور شان بے نیازی سے بولا، 100 روپے دے دینا آپ۔ 100 روپے؟ یار یہاں سے فاصلہ کتنا ہے، قریب ہی تو ہے، 100 روپے بہت زیادہ ہیں، کوئی مناسب بات کرو۔ اذان کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب رات کا وقت ہے، یہاں سے ہاسپٹل تک 70 روپے تو ہم دن میں بھی لے لیتے ہیں، اس وقت تو وہاں سے واپسی پر کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، 100 روپے بالکل مناسب ہیں۔ رکشہ والا اپنی بات پر مصر رہا تو وہ اذان قطعیت سے بولا، بس 70 روپے ٹھیک ہیں، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ چلیں بیٹھیں، آپ بھی کیا یاد کرو گے، رکشہ والا شاہانہ انداز میں بولا تو اذان جلدی سے رکشہ میں بیٹھ گیا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد رکشہ ہاسپٹل کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ تو سجود و قیام کے پیچھے اور میں ہوں امام کے پیچھے، سدرۃ المنتہا سے آگے تو کیا ہے تیرے مقام کے پیچھے، جام کوثر کو آشکارا کر، کون مخفی ہے جام کے پیچھے، کون ہے لا سے لا الہ تک، کون ہے اس کلام کے پیچھے، لفظ کن سے جہاں بنا ڈالا، بھید کیا تھا تمام کے پیچھے، کیا دکھاتا ہے روشنی دے کر، کیا چھپاتا ہے شام کے پیچھے، کھیل کیسا رچا دیا تو نے روز محشر کے نام کے پیچھے، میم سے پہلے مر گیا امجد جب چلا الف لام کے پیچھے۔ فرزان کی آواز بلند ہو رہی تھی اور سرو کے بلند قامت پودے کے عقب میں کھڑا یاور زمان پورے انہماک کے ساتھ اس کے منہ سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو سننے کے ساتھ ساتھ گہری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ فریال اور فرزان اس وقت لان پر رکھی نفیس کرسیوں پر براجمان چائے پی رہے تھے اور ان کے ارد گرد تا حد نگاہ پھیلے ہوئے رنگ برنگے پھول جیسے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر ہوا کی تال پر جھومتے لہراتے خوشی سے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ فریال رات ہی فرزان کو گھر لے آئی تھی اور یاور زمان نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اچانک اس کی نظریں فریال کے چہرے سے ٹکرائیں جو پوری محویت سے فرزان کی جانب متوجہ تھی۔ یاور زمان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ شخص ایک آنکھ نہ بھایا تھا اور فریال کی اس میں یہ گہری دلچسپی بھی اس کے لیے لمحہ فکریہ تھی، لیکن بہرحال بہن کا دل دکھانے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔
उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश की, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब रहा। मुतमईन होकर उसने कदम आगे बढ़ाए और फिर करीब पहुंचने के बाद कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, वो ज़ाते लाजवाल जिसने इस जवाल पजीर दुनिया को तख्लीक किया हमारी फहमो फरासत से मावरा है। ऐसे अशार अगर अलामा डॉक्टर इकबाल कहें तो बात कुछ समझ में आती है। अब सब लोग तो तखय्युल की वैसी उड़ान या इल्म की उस बुलंदी को नहीं छू सकते ना। कम से कम मैं तो फरजान साहब के इस अंदाज और इस शायरी से मुत्तफिक नहीं हूँ। फरियाल ने मोहब्बत से भाई की तरफ देखा, फिर कदरे एहतजाजी लहजे में गोया हुई, रहने दे भाई, इतने अच्छे शेर तो सुनाए हैं फरजान ने, आपको तो बस इख्तलाफ करना होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। फरजान ने मतानत से यावर जमान की आंखों में झांका और फिर अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ, यावर जमान साहब, इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 3 सर्जन दोस्त एक जगह इकट्ठे बैठे गप्पे लगा रहे थे। एक ने कहा, मेरे पास जंग के दिनों में एक शख्स आया जिसकी दोनों टांगे जाया हो गई थी। मैंने उसको मसनूई टांगे लगाई और वो शख्स बेहतरीन दौड़ने वाला बन गया। हैरत अंगेज बात यह हुई कि अब उसने ओलंपिक खेलों में मेडल भी जीत लिया है। दूसरे ने कहा, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास एक ऐसी औरत लाई गई थी जो एक 30 मंजिला इमारत से नीचे गिरी और उसका चेहरा बिल्कुल मस्क हो गया। मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे बिल्कुल एक नया चेहरा दे दिया। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अखबार में पढ़ा कि उस औरत ने मलका हुस्न का मुकाबला जीता है। तीसरे ने कहा, भाई ये कोई खास हैरत की बात नहीं, ये तो सर्जरी का कमाल है। मैं तुम्हें इससे भी हैरत अंगेज वाकया सुनाता हूं। मेरे पास एक जख्मी लाया गया जिसका दिमाग बिल्कुल कुचला हुआ था। मैं उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या हल निकाला जाए। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एक खेत में गया। वहां से मैं एक कद्दू लाया और उसके सर में रखकर सिलाई कर दिया। कमाल की बात यह है कि वो शख्स आज हमारे मुल्क का वजीर दाखिला है। फरियाल की बेसाख्ता सुनाई देने वाली हंसी की आवाज पर यावर जमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर पलट कर फरजान की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला, कहना क्या चाहते हो? बात कुछ समझ में नहीं आई। फरजान ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंखें डाली, फिर पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ, ज़हीन इंसान हमेशा अपने वक्त से आगे चलता है क्योंकि वो मुजिद होता है। जहानत के बगैर कामयाब होने में रुकावट नहीं, बल्कि जहानत के साथ कामयाब होने में ज्यादा मुश्किलात हुआ करती हैं। हमारा अलमिया ही यही है कि हम अपने इर्द गिर्द ज़हूर पजीर होने वाले मौजज़ात को देखने की सलाहियत नहीं रखते। जिंदगी क्या क्या नेमतें हम पर निछावर करती है, उनको देखने, जांचने या परखने का कोई पैमाना हमारे पास सिरे से मौजूद ही नहीं, क्योंकि देखने के लिए जरूरी होता है कि आप में समझने की अहलियत भी हो। जो अफराद ज़हीन नहीं होते उनकी बात लोग बहुत जल्द समझ लेते हैं, लेकिन किसी ज़हीन शख्स की बात को समझने के लिए इस मुआशरे को सालों लग जाते हैं। यावर जमान ने हैरत से उसकी बात सुनी, चंद लम्हे जैसे नजरों ही नजरों में उसे तोलने की कोशिश की, फिर फरियाल के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए बोला, फरियाल, आपके फरजान साहब शायद अपनी ज़ात से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। अपनी ज़ात पर एतमाद होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये एतमाद हद से बढ़ जाए तो उसे खुद पसंदी कहा जाता है। और हमारा मुआशरा, यावर जमान का जुमला अभी खत्म नहीं हुआ था कि फरजान उसकी बात काटते हुए नपे तुले अंदाज में गोया हुआ, और हमारा मुआशरा ही अपनी ज़ात पर एतमाद करने वालों की हौसला शिकनी करता है, खौफजदा करता है, क्योंकि मुआशरा ये बात अच्छी तरह जानता है कि जो शख्स पूरे एतमाद है वो अपनी मर्जी करता है और मौसर भी हो जाता है। उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अगर आप किसी शख्स के एतमाद को कुचलते हैं तो गोया आपने उसकी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया, उसकी ताकत छीन ली। अब वो हमेशा ज़रूरत महसूस करेगा कि कोई उस पर गलबा पा ले, उसकी रहनुमाई करे, उसे हुक्म दे। ऐसा शख्स एक शरीफ शहरी, एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा कौम परस्त, एक अच्छा हिंदू, अच्छा ईसाई या अच्छा मुसलमान तो हो सकता है, मगर वो कोई हकीकी फर्द नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं होंगी। वो सारी जिंदगी भटकता रहेगा। जिस तरह दरख्तों को जरूरत होती है कि उनकी जड़ें हमेशा जमीन में रहें,
इसी तरह इंसान को जरूरत है कि उसकी जड़ें हयात में हों, वरना वो एक बेकार और अहमकाना जिंदगी गुजारेगा। अगर आप अपने आप से मोहब्बत के काबिल नहीं तो आप किसी से भी मोहब्बत करने के लायक नहीं रहते। ये एक आलमगीर सच्चाई है कि पहली मोहब्बत इंसान को अपनी ज़ात ही से होती है। हाँ, अगर ये मोहब्बत अपनी ज़ात से आगे नहीं बढ़ती और इसका महवर सिर्फ अपना आप ही रहे तो शायद ये खुद पसंदी या खुद गर्जी कहलाए। ये ज़रूर याद रखें कि अगर आप सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो ऐसी मोहब्बत भी बांझ कहलाएगी। खुद से मोहब्बत ही दूसरी तमाम तर मोहब्बतों की इब्तदा है। जो शख्स खुद से मोहब्बत करता है, जिस शख्स का भरोसा अपनी ज़ात पर हो, वो दूसरों पर बदएतमादी नहीं कर सकता, यहां तक कि उन लोगों पर भी नहीं जो उससे धोखा कर रहे होते हैं। अपनी ज़ात पर एतमाद सबसे कीमती चीज है। एक अजीम सूफी बुजुर्ग ने कहा है कि अगर आप खुद अपने नहीं बन सकते तो कोई दूसरा आपका क्यों बनेगा। लिहाजा मोहब्बत का आगाज अपने आप से करें। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो फिर आपसे कौन करेगा। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आपकी जड़ें आपकी ज़ात के अंदर फूटना शुरू कर देंगी। फिर आप मुझ समेत अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों, अपने बीवी बच्चों पर भी भरोसा करने लगेंगे। परिंदों, जानवरों, दरख्तों, चांद और सितारों से भी आप सिर्फ तब ही मोहब्बत कर सकेंगे क्योंकि भरोसा ही एक ऐसी चीज है कि बाकी सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाता है। फरसूदा ख्यालात सच्चाई पैदा नहीं कर सकते। सच पहले ही से मौजूद होता है और सच आपके यकीन का मोहताज नहीं। आपके मानने या ना मानने से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सच है, चाहे आप उस पर यकीन करें या ना करें। फरजान ने अपनी बात खत्म की तो यावर जमान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और फिर फरजान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, आपसे बात करके खुशी हुई मिस्टर फरजान, खासी मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं आप। फरजान ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो यावर जमान उसका हाथ थामकर मजबूती से दबाते हुए बोला, सच्चाई दरियाफ्त करने की जुर्रत आज तक चंद ही लोगों ने की है क्योंकि ये बड़ा जान जोखों का काम होता है। जरूरी नहीं कि इंसान की हर सोच दुरुस्त ही हो। मुमकिन है कि ऐसी हर चीज खत्म होकर रह जाए जो आप पहले ही से जानते हैं और आपको अपनी पूरी जिंदगी ही दोबारा तरतीब देनी पड़े। बाज़ औक़ात सच बड़ा खतरनाक हुआ करता है और ऐसा भी हो जाया करता है कि ये इंसान के सारे गुमान खत्म कर देता है, सारे ख्वाब चकनाचूर कर देता है। बिल्कुल आग से गुजरने वाली कैफियत होती है और आप तो जानते हैं कि आग जला सकती है, मार सकती है। किसे खबर कि कल क्या होने वाला है। बहरहाल फिलहाल तो मैं एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और बात भी। यावर जमान पलट कर जाने लगा तो अकब से बुलंद होती फरजान की आवाज उसकी समातों से टकरा रही थी, नहीं जमीन पे किसी का भी एतबार मुझे, कहा था किसने के अफलाक से उतार मुझे। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।